नमस्कार फ्रेंड, वेलकम फ्रेंड। आज हम बैंकर्स द्वारा यानी कि बैंकर्स के लिए टॉप मैनेजमेंट का क्या रवैया होता है, इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा, आपने भी देखा होगा, जो कि बैंकर के लिए था। उसमें तानिया अरोरा, ब्रांच मैनेजर, इंडियन बैंक, जो पालम दिल्ली की ब्रांच की ब्रांच मैनेजर थी, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से चेन्नई कर दिया गया। उनके ऑर्डर में जो वहाँ के सीनियर मैनेजर ने यानी कि रीजनल मैनेजर ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था ड्यू टू निगेटिव ग्रोथ इन बिजनेस ऑफ ब्रांच, और इस कारण से आपका ट्रांसफ़र दिल्ली से चेन्नई किया जा रहा है कॉरपोरेट ऑफिस में, और इमीडिएटली आप रिलीव होकर वहाँ ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, ये पत्र पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आखिर में टॉप मैनेजमेंट का रवैया हमारे स्टाफ के प्रति, जो उनके एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, जिनकी वजह से ही उनका कार्य चलता है, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर अभी एक लीडिंग नेशनलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारे में अपने रीजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स को एक पत्र लिखा और उन्होंने अच्छी बात कही कि कोई भी ट्रांसफ़र बिना सेंट्रल ऑफिस के प्रायर अप्रूवल के आप नहीं करेंगे। उनका जो पद सर्कुलर आया, उसमें अटेंशन टू एफजीएम्स, एसआरएम्स एंड आरएम्स, आई इनवाइट योर अटेंशन टू सेंट्रल ऑफिस इंस्ट्रक्शन नॉट टू ट्रांसफर ऑफिसर्स टिल 31st March 2022 and seek our prior approval before effecting any transfer, either on the pretext of non-performance or otherwise. The above guidelines has been reiterated on several occasions through our circulars. However, I regret to mention that adherence to the above has not been ensured by few of our regions. On inquiry, the usual excuse of non-performance is extended. Please be advised, for the last time during this financial year, prior approval of central office is required to effect any such mid-year transfer before completion of 3 years term of officers. The instrument of transfer is not supposed to be used to address the issue of so-called non-performance. Such transfer only result in transfer of non-performance from one office to the other at the expenses of the bank. Rather, leading by example, hand-holding, counseling, mentoring, and extending timely support and the front-ending concern for our colleagues should be our approach for facing our challenges. Time and again, the mantra of employees first has been repeated by our MD and CEO and ED sirs. Needless to add that acts of indiscipline, misdemeanor, malfeasance need to be suppressed with an iron hand. At the same time, all of us should bear in mind that no one is above the bank, and we must always be cognizant of this in our behavior and actions. I once again request you to keep the above as a principal tenet of our approach to human resource management in the bank, and no violation will be withstood. Regards, GMHR. फ्रेंड्स, सर्कुलर में जो निहित बातें हैं, हम अभी किसी के नॉन परफॉर्मेंस के लिए आपको पहले देखना चाहिए कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस। ब्रांच का इंफ्रा क्या है, ब्रांच में ह्यूमन कैपिटल क्या है, ब्रांच की स्थिति क्या है, ब्रांच की लोकेशन क्या है, और अगर सब कुछ ठीक है, देन वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फियर फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। के डिक्शनरी से 2 शब्द खत्म हो गए हैं, मोटिवेशन और क्रिएशन ऑफ पॉजिटिविटी। जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी से भी कोई भी अच्छा कार्य नहीं करवा सकते हैं। You have to create the human capital
to perform better. और अब कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके वजह से अभी महाराष्ट्र के यूनियन ने, महाराष्ट्र बैंक यूनियन रिक्वेस्ट restricting the banking hours till 2 p.m. With the recent surge of coronavirus cases due to the new super strain Omicron, bank unions demanded a 5-day week for banking operations and capping the attendance of the workforce to 50% in Maharashtra till the pandemic scenario improves. In a letter to the SLBC, the United Forum of the Bank Union Maharashtra also urged to consider restricting banking hours till 2 p.m. महाराष्ट्र की तर्ज पे ही सारे स्टेट के SLBC को स्पेशल मीटिंग कन्वीन करके इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बैंकर्स का जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं उसे रिस्ट्रिक्ट करें, 5-day वीक करें और वर्क फोर्स 50% से ही काम चलाएं। ये सब लेना इसलिए आवश्यक है कि पिछले दिनों की तरह इस बार हमारे बैंक साथियों के साथ कैजुअलिटी ना हो और बैंकिंग का काम स्मूथली चल सके। लेकिन SLBC जब तक स्पेशल मीटिंग कन्वीन करके अपने स्टेट में इस तरह के इंस्ट्रक्शंस पास नहीं करती है, तब तक इंडिविजुअल बैंक कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का भी ये दायित्व तो बनता है कि SLBC पे प्रेशर बना के ये स्पेशल मीटिंग कन्वीन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।